तोड़ भाई। स्टार्ट किया? ओके माइक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ मालिक। Basically what we have started with respect to the earlier concept, I hope you are very clear with strategic management process. You are very clear what are the level of management who develop the strategies. So once again we are discussing the same thing. Strategic management process includes there are 5 stages as such. One is what we need to do first is basically developing a vision, mission, goals and objective. Second, what we need to focus on analysis. Which analysis? Organization and environment. Third scenario will be focusing on formulating strategy. Fourth scenario is basically implementing strategy. And fifth scenario is evaluating and taking corrective actions. I hope you remember this concept altogether. To be precise how our chapters are linked, I am just on the index of the particular book of SM, volume 1, where the first chapter focus on introduction to SM. Okay, the first chapter is basically introduction to SM. Okay, in this chapter what we will be studying? What is a strategy? What is a management? What is a strategic management? And most importantly, in strategic management, your first basic point is called strategic intent. What it is called? Strategic intent. What is the meaning of intent? Intent means what is an intention? What is an intention? अगर मैं आपसे बोलूँ आपका intent क्या है? When you are sitting in the class, what is an intent? Okay, to definitely to get the knowledge and other things ये intent है, but ultimate intent क्या है? Ultimate intent है to give the examination. अच्छा, why you are giving the examination? To become a CA. To become, why you need to want to become a CA? Okay, so ultimately we need to do the job, or I need to do the practice or teaching or business, whatever it may be. So ultimately is basically vision, mission, goals, objectives, everything. In chapter 1, so what are the things we will be studying? Chapter 1 का overview में दे रहा हूँ. What are the things we will be studying? We will be studying about strategy. Second, we will be studying about management. It's hardly 2 pages. After that, one of the most important concept comes is strategic management. What is an SM? What are the benefits of SM? What are the limitations of SM? These are the questions we will be focusing on. And along with this, I will be focusing on one key word that is called strategic intent. Intent means what, sir? Vision, mission, goals and objectives. And technically, I hope everybody is aware that 5 stages अपने को जो है वो फॉलो तोड़ करने हैं. अच्छा, क्या ये सीक्वेंशियली फॉलो करने होंगे हमें? क्या मैं ऐसे पहले कर सकता हूँ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लेते हैं, आफ्टर दैट एनालिसिस, जाने देना. ओके, और वी नीड टू डू एनालिसिस फर्स्ट, देन ओनली फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी. व्हाट डू यू थिंक? एनालिसिस पहले करना चाहिए, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पहले करना चाहिए? सर चेंज कर देना सीक्वेंस, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने 5 सीक्वेंस बोले, हम अपने हिसाब से लिखेंगे ना आंसर. क्या ऐसे पॉसिबल है? पक्का? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? एनालिसिस, और उसके बाद फॉर्मुलेशन ना. तो सीक्वेंशियली फॉलो करना पड़ेगा. तो टेक्निकली सीक्वेंशियली फॉलो जब करते हैं हम, ये वॉट एवर यू सजेस्ट विद द सीक्वेंस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक इंटेंट. तो सबसे पहले हमें क्या बनाना जरूरी है? हमारा विजन. विदाउट विजन सिटिंग हियर इज बेवकूफी. विदाउट मिशन यू आर सिटिंग हियर, दैट डजंट मेक ए सेंस एट ऑल. एंड यू डू हैव ए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. Now technically, okay, please do understand, every company will be having vision, mission, goals and objectives. Every company will be having vision, mission, goals and objectives. But company working in a lifestyle matters a lot, and that is called a concept of values. Chalo, I am giving you just a small example. I want to purchase one product, or you want to purchase one product, which is same price, same cost, no change. Price same है, cost same है, offer same है, and the same product is given by Tata as well as Reliance. Ambani is also giving the same product, same price, same cost, सब कुछ सेम, फीचर्स भी सेम, उसकी क्वालिटी सेम, सब कुछ सेम, और वही प्रोडक्ट टाटा भी दे रहा है. तो मेरे को बताइए आप किससे परचेस करोगे? दोनों दे रहे, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस. किससे परचेस करोगे? मैक्सिमम विल सजेस्ट सेम, सब कुछ सेम है, तो किससे परचेस करोगे? देखो, अच्छा अगर प्राइसिंग बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्राइस ये कम दे रहा है, तो आपका दिमाग जाए नहीं भाई. ओके, आई विल शिफ्ट टू एग्जांपल, जियो सबसे सस्ता दे रहा है, टाटा महंगा दे रहा है. जियो, व्हाई यू शिफ्टेड टू जियो? प्राइस. इफ यू रिमेंबर कॉस्ट लीडर, बट आई एम सेइंग प्राइस इज सेम, कॉस्ट इज सेम, एवरीथिंग इज सेम. देन which company? Tata. Why Tata? Why not Reliance? This is something which you need to understand if you are having vision, mission, goal. अच्छा, Reliance does not have vision, mission.
क्या रिलायंस के पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है? अच्छा, क्या टाटा के पास भी विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है? लेकिन टाटा के पास एक एडिशनल चीज है, वो है वैल्यूज। तो सर इसका मतलब रिलायंस के पास वैल्यूज नहीं है क्या? है, बट वो जो सोसाइटी की नजर में वैल्यूज है उसकी कदर ओके टाटा के थ्रू हो रही है। एक बेस्ट एग्जांपल, रिलायंस इज ओनली फोकसिंग ऑन profitability. Okay, no doubt every company working in industry is focusing on profitability, but Tata when earning the profits is giving back to the society without any compliances. But Reliance is not giving back to the society. Reliance is saying I will give to the shareholder who invested in me. Okay, so Reliance में who will be more happy? Shareholders rather than society, and fair enough. कोई वो गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट उनकी फिलोसॉफी है, उनका कॉन्सेप्ट है, एंड फॉर दैट पॉइंट दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज। क्या बोलते हैं उसको मालिक? वैल्यूज। तो मेरे को बताओ, विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होना काफी है या इनके साथ वैल्यूज होना बहुत जरूरी है? वैल्यूज मैटर्स अ लॉट। उसकी वजह से भी इंडस्ट्री का नजरिया चेंज हो सकता है। डीलिंग इन सेम प्रोडक्ट बट यू कैन हैव अ गुड एडवांटेज, यू कैन हैव ए गुड एडवांटेज। चैप्टर 1 अपने को ये सिखाएगा। चैप्टर 1 हमारा ये रहेगा। चैप्टर 1 हम स्ट्रैटेजिक पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, 5 चैप्टर है वो, बट मेन कॉन्सेप्ट विल बी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट व्हिच हैज बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंक्लूडिंग May 24 अटेम्प्ट भी देखोगे, वहां पर भी क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे रहा है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, उसके साथ वैल्यू, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन, ये सब आपको मिलेगा चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 2 का नाम ऑलरेडी आपको पता है, ओके, क्या नाम मिल रहा है? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड व्हिच एनवायरनमेंट? एक्सटर्नल। ओके, थोड़ा सा बेसिकली जानकारी ले लेते हैं। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? द एनवायरनमेंट व्हिच इज नॉट इन योर कंट्रोल, द एनवायरनमेंट व्हिच इज नॉट इन योर कंट्रोल। आई होप यू हैव हर्ड समथिंग लाइक पेस्टल एनालिसिस। सुना है कभी पेस्टल या पेस्टल कलर नहीं, पेस्टल एनालिसिस। व्हाट इज अ पेस्टल एनालिसिस? इफ आई डिस्कस सम कीवर्ड्स, इट्स लाइक शॉर्ट फॉर्म फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, technological, legal, environmental. This is called a concept of PESTEL. Doing this analysis, okay, as if I'm working here, how political environment will be supporting me, or how political environment will be having an impact on me, how legal environment will be having an impact on me. Example, if I'm dealing in this particular water bottle, I want to sell this bottle to somebody. Along with this, I'm using a plastic material for packing. Okay, suppose Maharashtra state decide, boss, okay, so plastic manufacturing should be बंद और यूसेज शुड बी बंद, ऐसा हो सकता है। ओके, एंड ऐसा हुआ भी था बीच में। आई डोंट नो हाउ मेनी आर अवेयर, प्लास्टिक वाज ऑलमोस्ट बैंड, ओनली यूजर फ्रेंडली प्लास्टिक और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक वाज अबाउट टू बी यूज्ड। वापस चीजें इंपैक्ट हो गई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट अपनी कंट्री में सब पॉसिबल है, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, यानी पॉलिटिकली पॉइंट है। तो पॉलिटिकल की वजह से, लीगल की वजह से मेरे बिजनेस पे कितना इंपैक्ट आता है, इसकी स्टडी करनी जरूरी है। देयरफॉर दैट सेकंड चैप्टर कम इनटू पिक्चर, दैट इज कॉल्ड कौन सा एनालिसिस? एक्सटर्नल। और जब मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल एनालिसिस, इट फोकस ऑन विच एनालिसिस? एनवायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन? एनवायरमेंट। आई डोंट नो, और एक वर्ड आपको मालूम है क्या, और ये कॉमनली सुनते सब लोग, होपफुली आपने भी सुना होगा, स्वॉट। व्हाट इज स्वॉट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। वापस चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, मेरे पास क्या ऐसा यूनिक चीज है जो बेस्ट है कंपेयर टू अदर्स। वीकनेस, ऐसा क्या मेरा प्रॉब्लम्स है जो दूसरे के पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो टेक्निकली अगर देखोगे, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो किसी और की वीकनेस है, और किसी और का स्ट्रेंथ है वो मेरा वीकनेस है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज ऑलवेज इंटरनल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज ऑलवेज इंटरनल। एंड ओटी का फुल फॉर्म अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इज ऑलवेज एक्सटर्नल। तो मुझे एनवायरनमेंट में जब स्टडी करनी होगी, एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होगी, मुझे किसकी स्टडी करनी होगी? स्ट्रेंथ, वीकनेस या अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, बिकॉज ये एनवायरनमेंट कौन सा है? एक्सटर्नल। तो चैप्टर 2 में हम किसके बारे में देखेंगे? अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या होते हैं, इस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को कैसे कैपिटलाइज किया जाता है, व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दैट्स ए लेटर पार्ट, बट एनालिसिस करके हम डेटा क्या जमा करेंगे, दैट इज वेयर चैप्टर 2 कम्स इनटू पिक्चर। आई होप चैप्टर 2 इज वेरी क्लियर एट योर एंड। चैप्टर 2 को समझ में आया क्या? और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में डिफरेंस एक ही है। क्या डिफरेंस है? यहां पर ओटी किया, यहां पर एसडब्ल्यू किया। चैप्टर 3 में एसडब्ल्यू मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी हमारी क्या लेवल है वो देखते हैं भाई साहब। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मालिक। ओके, बट आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट यस्टरडे, दैट चैप्टर 3 विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, बिकॉज चैप्टर की हेडिंग पे मत जाना। चैप्टर की हेडिंग में एक ही नाम दिया है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, बट इट इज ऑल्सो हैविंग विद स्ट्रैटेजीज
हाँ, I discussed yesterday. अच्छा, how many levels of management are there who decide the strategy? 3. नाम? Corporate level, business level, functional level. Okay, I hope you may मतलब आप recall कर पा रहे हो. Corporate level में कितनी strategy थी? 4. नाम? Expansion बाद में बोलो, पहले एकदम stability, expansion, retrenchment, combination actually कुछ है ही नहीं. Combination तो इनका combination है, पर main strategies कितनी है? 3. What are the 3 strategies? ओके, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है. ओके, बिजनेस लेवल कौन सी स्ट्रेटजीज बनाते हैं? 3. वो भी 3 बनाते हैं. वो 3 कौन सी है? सस्ता, 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 कॉस्ट लीडर, कुछ अलग 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 अलग, सबसे अलग, डिफरेंशिएशन. टाटा नैनो कौन सा है? टाटा नैनो कॉस्ट लीडर. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओके, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, डिफरेंशिएशन. और कुछ किसी नीश मार्केट के लिए रोल्स रॉयस बनाते हैं. ओके, फोकस. आई होप क्लियर है मालिक. तो अब टेक्निकली मेरे को बताओ. ओके, अगर मैं बात करूं एप्पल, सैमसंग, एप्पल जो बनाता है, सैमसंग जो बनाता है, डिफरेंशिएशन. वीवो, ओप्पो, एकदम सस्ते वाले फोन, कॉस्ट लीडर. आई होप क्लियर है. और अगर आप देखोगे कुछ चीजें सिर्फ ऑनलाइन मिलती है और स्पेसिफिक लोगों के लिए मिलती है. रियलमी, वो कौन से अलग रहता है ना, दैट इज कॉल्ड फोकस. अब वो फोकस कैसे होता है वो अपने को समझेगा. बट दीज आर द 3 स्ट्रेटजी डिसाइडेड बाय हुम? Business level. Okay, and this point will be covered in which chapter? Chapter 3. So chapter 3 will be having 2 portion. One is analysis of which environment? Internal. And second, along with this, we also focus on business level strategy. Everybody with me? Yes. So chapter 3 will divide in how many portion? 2 portion. One will be analysis, one will be business level strategies. Business level strategies. I hope clear है Malik? Business level strategies कितनी होती है? नाम? डिफरेंशिएशन, फोकस. सबसे सस्ता बनाता है वो इंडस्ट्री में, सबसे अलग बनाता है. जब मैं बोल रहा हूं सबसे अलग है तो महंगा ही होगा. तो डिफरेंशिएशन कभी भी महंगा होगा. और कुछ एक लोग यूजर के लिए बनाते हैं, फोकस. आई होप क्लियर है मालिक. ओके, ये पॉइंट सबको याद आ रहा है मालिक? ओके, ऑनलाइन पर लोग ये याद आ रहा है ना? ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट याद आया. तो ये चैप्टर 3 रहेगा और इसके बाद अपना चैप्टर 4 जो अपनी कहानी तोड़ करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक choices. How many choices are there? 3. मतलब 4 है पर 3 आपको आनी चाहिए. कौन सी 3? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट. याद आया कुछ? ओके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. इसको कौन सी स्ट्रेटजीज बोलते हैं? नहीं, बिजनेस लेवल नहीं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज. वापस चाहिए, क्या नाम है उसका? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज. अच्छा, क्या कॉर्पोरेट लेवल को मैं टॉप मैनेजमेंट बोलूं? बिजनेस लेवल को कौन सा बोलूं? यही प्रॉब्लम है जो मैं आपको कल क्लियर किया था. ये भी टॉप है. अरे मालिक, ओके, ही इज ए सीईओ ऑफ कंपनी. कल अगर आपको याद होगा एग्जांपल, ओके, टीसीएस का सीईओ, मैनेजर का नाम बोलो अपने स्ट्रेटजीज के नाम में. ओके, टाटा ग्रुप का सीईओ, नहीं, वो ये नाम नहीं, कॉर्पोरेट लेवल या बिजनेस लेवल है. ओके, भाई साहब, टाटा ग्रुप का सीईओ, कॉर्पोरेट लेवल. टाटा कंसल्टेंसी का सीईओ, टाटा स्टील का सीईओ, फंक्शनल लेवल. बस मेरे को मालूम था. अब्बा डब्बा चब्बा होता है ना, वैसा ही फंक्शनल लेवल. टाटा स्टील का सीईओ फंक्शनल लेवल है, बिजनेस लेवल. ओके, आई होप क्लियर है मालिक. टाटा स्टील बिजनेस लेवल. हावड़ेगिरी मत करो फंक्शनल पे जाने के लिए, जस्ट बी स्टेबल. ओके, टाटा पावर का सीईओ, क्लियर ना? ओके, इस टाटा मोटर्स का सीईओ, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, उसका हेड फंक्शनल लेवल मैनेजर. ओके, अब मेरे को बताओ, ये हेड बोला मैंने वर्ड, क्या ये लोअर मैनेजमेंट है? ये भी हेड भी मतलब कौन सा? सीनियर ना. बस फर्क याद रखना. इसीलिए टॉप मिडल लोअर से बाहर निकलो. मैंने आपको कल भी समझा दिया, टॉप मिडल लोअर से बाहर निकलो, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन विच मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट इटसेल्फ. बस इतना फर्क होगा. अब एक वर्ड अगर आपको चाहिए जैसे टॉप मिडल लोअर से फैमिलियर होने के लिए, वी कैन डिस्कस द वर्ड सीनियर एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स. Which managers? Senior and operational. So if I discuss about corporate level and business level, senior, and functional level, operational. Senior जो long term vision रखेगा, okay, जो business को रोज के रोज काम में लगाएगा, उसको हम नाम क्या देंगे? Operational. This is something which we can discuss it out. Okay, but technically I hope you are already aware. Okay, ये अभी clear है कि top, middle, lower नहीं है. तो ये सारे के सारे कौन है वैसे देखा जाए तो? टॉप मैनेजमेंट है. बट उसको नाम और देना है तो सीनियर एंड ऑपरेशनल. सीनियर एंड, अच्छा, तो आप बोलोगे सर फिर टॉप मिडल लोअर किधर गया सर? ये ऑपरेशनल जो है ना,
इट कैन बी कैटेगराइज एज टॉप और मिडल ऑल्सो। और इनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं लोअर, जो अपनी हायरार्की में है ही नहीं, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी बनाते ही नहीं है। वो स्ट्रैटेजी थोड़ा ना बनाएगा। अब मेरे को बताओ, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये मशीन में डाल रहा है, ये कर रहा है, क्या ये बंदा स्ट्रैटेजी बनाएगा? नहीं, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा ना बनाएगा, ये तो काम करेगा। लोअर मैनेजमेंट क्या करता है? काम करता है या स्ट्रैटेजी बनाता है? काम करता है। तो उसको काम क्या करना है वो कौन बताता है? टॉप मैनेजमेंट। तो अपना टॉप मैनेजमेंट मतलब कौन? फंक्शनल। एक हायरार्की है, तो याद रखना, टॉप मिडल लोअर से खत्म करो कहानी, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। और एक नाम चाहिए तो सीनियर ऑपरेशनल। सीनियर ऑपरेशनल। आई होप क्लियर मलिक। अच्छा, स्ट्रैटेजिक जो प्लानिंग करेंगे वो कौन से मैनेजमेंट हो गए? सीनियर। और डे टू डे प्लानिंग करने के लिए रोल प्ले करेंगे ऑपरेशनल, जिसको आप फंक्शनल मैनेजर भी बोल सकते हो। अपन कैसे उस मैनेजर को देखेंगे, लेकिन आई होप ये पॉइंट क्लियर है सभी सबके लिए। तो हम कौन सा वर्ड यूज नहीं करेंगे, कौन सा वर्ड अवॉइड करेंगे? पंडर लोग कौन सा वर्ड अवॉइड करेंगे? टॉप मैनेजमेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? अच्छा, और मैं आपको बता दूं, अपना लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा सा, ये जो 10 बजे का है वो 10 तक चालू होता है अपना, बिकॉज प्रशांत सर ने मेरे को ऐसा कम्युनिकेट किया हुआ है। तो अपना लेक्चर का टाइमिंग रोज का क्या है अभी? 10:05 के बीच में अपन चालू करते हैं। तो ऑनलाइन के लिए भी तो 10 तक अपना चालू होता है, बिकॉज ये मेरे को कम्युनिकेट किया है। देखो, अपन एम्प्लॉय आदमी है, ओके हम क्या है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब देखो प्रशांत सर जो सुबह चालू करते हैं, ओके ही इज माय सीनियर, विनोद सर इज सुपर सीनियर। आप समझ रहे हो, मतलब मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? मेरे को जो कौन अपन बीच वाले, मतलब समझ रहे हैं, अभी ये जो बोलेगा ये बजाएगा, ये भी बजाएगा, हम बोलेंगे ओके सर। तो प्रशांत सर ने बोला, जोकिंगली बोल रहा भाई, ओके बट नेवरदलेस, ओके अपना टाइमिंग का स्टार्ट होने का टाइमिंग क्या है? 10:10, ओके 10:05 के बीच में अपन चालू करेंगे। डेफिनेटली स्टार्टिंग गुड मॉर्निंग ये होता ही है। तो अगर नाश्ता करते करते अरे 10:05 होगी, मां कसम, गुड मॉर्निंग भी जाएगा, डोंट वरी। तो फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में अपन कितने चॉइसेस पढ़ेंगे? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में कितने चॉइसेस पढ़ेंगे? 3। कौन से? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। ये किसके चॉइसेस है? कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है, बिजनेस लेवल के चॉइसेस तीसरे चैप्टर में। फंक्शनल लेवल के चॉइसेस सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट कवरिंग विद सिलेबस फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। तो फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज कुछ डिस्कस की हुई है, कुछ नहीं की हुई है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस की हुई है थोड़ी बहुत, 2 में भी, 3 में भी। अदर देन दैट इट इज नॉट डिस्कस्ड एट ऑल। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं है, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डिस्कस नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं है। तो many strategies which are about to focus on functional level is not discussed in our syllabus. So you are not required to worry about which level? Functional level. And the last concept नाम से ही बता रहा है, नाम क्या है? Implementation and evaluation. Okay sir, तो थोड़ा सा टेक्निकली, ओके टू स्टार्ट विथ सर हम कैसे चालू करेंगे, एक 10 मिनट और थोड़ा सा फ्लो को देख लीजिए। आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। I do think everybody understood what is a formulation. Formulation मतलब हमने स्ट्रैटेजी बनाना है। Technically, if I say like this, I am born and brought up in Mumbai, and from Mumbai, okay, I am already having an good market of Mumbai. Now I want to start the lectures in Pune. This is with strategy. The same lectures I need to start in Pune. Okay, same SM मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूँ, बहुत भारी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पुणे में आके वो पढ़ाऊंगा पक्का। मार्केट डेवलपमेंट, अब मेरे को बताओ मार्केट डेवलपमेंट कौन से चैप्टर का स्टडी है? थोड़ा सा सोच के बताओ। अच्छा, पहला दूसरा तो बोलना भी मत, ओके तीसरे और चौथे में कौन सा होगा? फोर्थ वाला। आई होप क्लियर है मालिक, एवरीबडी क्लियर? फोर्थ वाला समझ में आया? फोर्थ वाला एवरीबडी? ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, जब मैं फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं, ओके इसमें अपने 3 स्ट्रेटजी के नाम लिए थे। 3 कौन सा था? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। तो टेक्निकली मार्केट डेवलपमेंट किसका हिस्सा है? एवरीबडी एग्री विद दिस? ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन, अब मेरे को बताओ एक्सपांशन करना, डिसाइड करना वाज ए स्ट्रेटेजिक चॉइस। एग्जांपल, आई वाज हैविंग एन ऑप्शन टू गो विद पुणे आल्सो, आई वाज हैविंग एन ऑप्शन टू गो विद इंदौर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, आई सिलेक्टेड पुणे। तो नाउ क्वेश्चन कम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन? इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? थोड़ा सा अच्छे से समझाइए मेरे को, फिर इंप्लीमेंटेशन पे बात करते हैं, एंड इवैल्यूएशन विल बी मच इजियर, डोंट वरी। इंप्लीमेंटेशन मीन्स व्हाट? You have to take actions in that way. Example मतलब वो आप मेरे को समझिए इंप्लीमेंटेशन, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। What is an example? What is an expansion strategy? अच्छा सर चलो एक चीज मेरे को समझाओ, सबसे पहले मैं एक्सपेंशन डायरेक्टली करूंगा या एनालिसिस किया? कौन सा एनालिसिस किया? मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी, मैंने मार्केट में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स देखा, ओके आई फाउंड आउट अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मैच किया और मेरे को लगा पुणे इज बेटर ऑप्शन।
ओके मेरे लिए नजदीक भी है, मुंबई से नजदीक भी है, अदर एलिमेंट बहुत सारे आई आइडेंटिफाइड दैट वन. तो टेक्निकली आई डिड द एनालिसिस. ओके एंड व्हेन आई डिड द एनालिसिस आई वाज ऑलरेडी हैविंग माय विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो टेक्निकली आपके 3 स्टेप मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए. थर्ड में मैंने डिसाइड किया आई वांट टू गो टू पुणे. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन? गिव मी एन एग्जांपल. मतलब पुणे में जाना है मुझे, आप बताइए अभी क्या करना चाहिए. इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन बोल. लुकिंग फॉर प्लेस फॉर टेकिंग क्लासेस. लुकिंग प्लेस फॉर टेकिंग क्लासेस. ओके. स्टाफ अपॉर्चुनिटीज लाइक स्टाफ रख सकते हैं वगैरह. स्टाफ को रिक्रूट करना. ठीक है, स्टाफ को रिक्रूट करना. क्या ना ऐसे डायरेक्टली स्टाफ रिक्रूट करूंगा या मैनेजर रिक्रूट कर सकते हैं? मैनेजर रिक्रूट कर सकते हैं. ओके. एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, अब मेरे को बताओ एडवर्टाइज करना थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओगे. एडवर्टाइज करना कौन से लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट, बिजनेस या फंक्शनल? फंक्शनल, बिकॉज वो मार्केटिंग वाला बंदा है. तो मैंने अपना काम बता दिया. अल्टीमेटली मेरे को बताओ इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? फंक्शनल. अच्छा मेरे को स्टाफ चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? कौन लाएगा स्टाफ? HR. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन खरीदेगा? कॉर्पोरेट लेवल आके खरीदेगा इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, या बिजनेस लेवल वाला खरीदेगा या इंफ्रा हेड खरीदेगा? इंफ्रा डिपार्टमेंट लेने का ना. एक प्रोक्योरमेंट सुना होगा आपने? नहीं सुना है वर्ड प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट हेड जो होगा वो खरीदेगा. अच्छा कैन इट मे हैपन लाइक दिस आल्सो? वी मे गो विद अ टाई अप विद सम अदर एकेडमी. इट मे हैपन. ओके, तो ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? ओके, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल? फंक्शनल लेवल. तो मेरा पॉइंट फंक्शनल लेवल ना. अच्छा मेरे को बताओ, मैंने डिसाइड कर लिया पूना जाना है. अब क्या मैं खुद जाके मैं काम करूंगा क्या? अच्छा टाटा ग्रुप ने डिसाइड कर लिया भाई पूना आना है. आपको क्या लगता है टाटा ग्रुप वाले हेड आएंगे क्या पूना? तो कौन आएगा? कौन सा मैनेजर आएगा? फंक्शनल. तो मेरा क्वेश्चन है इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? आपने एग्जांपल समझा? इसको एक वर्ड में अभी डिफाइन करेंगे. एक वर्ड, वन वर्ड. रिमेंबर दिस, चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. क्या बोला मैंने? चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एग्जांपल ओके ऑन द स्क्रीन देखो, ये मिट जाएगा एग्जांपल, बट ऑन द स्क्रीन बता रहा हूं. एग्जांपल अर्लियर आई वाज टेकिंग ओनली क्लास इन मुंबई, एंड मुंबई में देयर वाज प्रोक्योरमेंट हेड, देयर वाज HR का हेड, देयर वाज अकाउंटिंग का हेड, देयर वाज प्रोडक्शन का हेड. ओके, देयर वाज सम अदर हेड. आई होप ये क्लियर है. अब मेरे को बताओ क्या ये ऐसा कैसा हायरार्की कैन आई वर्क विद दिस हायरार्की इन पुणे आल्सो? नहीं, मेरे को पुणे के लिए हायरार्की बनाना पड़ेगा. इट मे हैपन द सेम पर्सन कैन मैनेज पुणे, दैट इज अ डिफरेंट चॉइस. बट डोंट यू थिंक पुणे के लिए भी मेरे को हायरार्की बनाना पड़ेगा? ये हायरार्की बनाना मतलब क्या हुआ? क्या चेंज करना? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना. किसको चेंज करना? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एग्जांपल ओके, इट मे हैपन मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी देयर. वन ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी, अरे भाई एग्जांपल अर्लियर मुंबई में मैं अकेला ही मैनेज कर रहा था, अब भाई पुणे है, अब दोनों तो मेरे से मैनेज नहीं होंगे, तो मैंने पुणे का एक हेड बना दिया, एक हेड रख दिया. ओके प्रशांत सर मेरे पुणे के हेड. नाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ पुणे. ओके, ये पूरा पुणे का मैनेज ये कर रहे हैं और मैं मुंबई का मैनेज कर रहा हूं. मतलब अल्टीमेटली क्या चेंज हुआ? स्ट्रक्चर. तो जब भी अपन इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग? आर वी गोइंग विद द सेम स्ट्रक्चर और वी आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर? तो इन चैप्टर 5 विल बी फोकसिंग ऑन टू थिंग्स. वन विल बी स्ट्रक्चर एंड वन बी चेंज. चेंज इज डिफिकल्ट. चेंज इज डिफिकल्ट. इमेजिन करो मुंबई में एक हेड था मेरा. ओके, उसको ही प्रायोरिटी मिल रही थी, उसको मालूम था अरे भाई अमित सर हमसे बात कर रहे हैं, बाकी किसी से बात नहीं कर रहे, मां कसम यही है, सब डिसीजन मेरे ऊपर है. अब पुणे का और एक हेड रख दिया. अब अमित सर 2 जन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, 2 जन से डिसीजन मेकिंग हो रहा है. डोंट यू थिंक वो बंदा जो मुंबई का होगा, द पर्सन हु इज ऑफ मुंबई, ओके, विल बी फीलिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाउ? सी एट द एंड ऑफ द डे, इवन इफ यू हैव लर्नड अबाउट वन वर्ड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट यस्टरडेज नितिन गडकरी यू आर अवेयर? अपने मिनिस्टर में है, एकदम तोड़ पोर्टफोलियो है. ओके, नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है कल का, पॉलिटिक्स में कोई भी हैप्पी नहीं है लाइफ में. पॉलिटिक्स में कल का स्टेटमेंट है, नो बडी इन पॉलिटिक्स इज हैप्पी. व्हाई? बिकॉज एट एवरी स्टेज एवरीबडी इज फोकसिंग टू हैव मोर पावर. एग्जाम्पल, इफ आई एम ऑन पर्टिकुलर स्टेज, आई एम हंग्री फॉर मोर पावर. ओके, मैं वो स्टेज से हैप्पी नहीं हूं. आई एम फोकसिंग ऑन मोर पावर, एंड दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पॉलिटिक्स. एंड ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है ना. पॉलिटिक्स इज नेवर एंडिंग गेम. ओके, और ये ऐसा नहीं होगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर बनके ये काम खत्मेगा. प्राइम मिनिस्टर के बाद और शायद और बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी. बिकमिंग ए सुपर पावर. एग्जांपल, इफ आई एम ए पीएम ऑफ कंट्री, आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट कंट्री शुड बी एक्सपांड. यानी भाई मैं 3-4 कंट्री को रूल करूं. ये सुपर पावर की हंगर है एंड ये रहने वाली है. अब मेरे को बताओ, एक मैनेजर मेरे इधर काम कर रहा है, अगर उसका पावर डिवाइड हो रहा है, ओके, विल ही बी इजीली अडेप्टिंग द थिंग्स? बिगेस्ट प्रॉब्लम.
चैप्टर 5 में हमको ये समझना होगा। चैप्टर 5 इसीलिए जो इधर ये मेजर पेजेस है ना चैप्टर 5 में, यहां पर आपको यही समझेगा कल्चर चेंज करना, प्रॉब्लम चेंज करना, एंड दैट्स इंप्लीमेंटेशन कम्स इनटू पिक्चर। तो इंप्लीमेंटेशन में 2 वर्ड याद रखना। फर्स्ट विल बी इंप्लीमेंटेशन में व्हाट विल फोकसिंग ऑन चेंज, वर्ड चेंज। आई होप यू आर क्लियर। क्या चेंज, और दूसरा क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड वंस द स्ट्रेटजीज आर इंप्लीमेंटेड we will evaluate the things. What we'll do? Evaluate मतलब क्या? Okay, पूना आया, क्या प्रॉफिटेबल हुआ? Okay, हुआ नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो we need to redesign our strategy. Okay, that redesigning is nothing but taking corrective actions. But corrective action can be taken only if you evaluate. Without evaluate, will it be possible? No. So how to evaluate, how to take corrective actions will be discussed in which chapter? Chapter 5. तो आई होप पूरा बैकग्राउंड आपको समझा। मेरे लिए समझाना बहुत जरूरी था। ओके सर, कल चैप्टर अपने को मालूम पड़े, बट व्हाई वी हैव डिस्कस्ड दिस बैकग्राउंड इज बेसिकली व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ ओवर ए पीरियड, यू नीड टू अडैप्ट द थिंग्स एंड वी कैन क्लिक इट आउट, बिकॉज मैं पूरा सीक्वेंस चैप्टर वाइज नहीं जाऊंगा। ओके एग्जांपल, राइट नाउ टुडे विल बी स्टार्टिंग विद सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ चैप्टर 1 एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद द कंटेंट ऑफ चैप्टर 4, बट बिफोर गोइंग ऑन चैप्टर 4 2-3 थिंग्स ऑफ चैप्टर 2 इज देयर। तो सर ऐसा जंबल अप हो जाएगा मेरे लिए? 100% नहीं, गारंटी नहीं। ओके बस समझाने का एक तरीका है, वो आपको समझना जरूरी है, बिकॉज अगर कुछ डेवलप करना है इट रिक्वायर्स सम व्हाट वी से डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स। तो वो ब्रिक्स को अपन बनाते जाएंगे और फ्लो में देखते जाएंगे, एंड वंस द चैप्टर इज ओवर, आई बेट कोई भी होने दो, कैसा भी होने दो, चैप्टर का फ्लो मां कसम तोड़ रहेगा। आई बेट ऑन दिस। मतलब आपको, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अपन पूरा एसएम जितना अपने घंटे का लेक्चर है ना, उतने घंटे में पूरा एसएम रिवाइज कर सकते हैं, पूरा एसएम। और ये मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, ये यूट्यूब पे देख, मतलब यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है पिछले बैचेस के, और ये उसके ऑल टुगेदर मतलब तीसरा बैच, 3 बैच देख ली, वो ऑलरेडी 1.5 घंटे में एसएम खत्म हो रहा भाई। तो 1.5 घंटे में अगर मेरे को पूरा स्ट्रक्चर लेना है तो इट्स अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। तो एकदम आराम से जाइए, फ्लो करते जाइए। ओके अब 2-3 चीजों की बात करते हैं जो आपका चैप्टर 1 में रहेगा। मेरे को बताइए, ओके स्ट्रैटेजी मतलब क्या? क्या ये बेसिक वर्ड समझ में आया क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं बोला मैंने, स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी वर्ड को अपन एक फोकस कर रहे हैं, सुन लीजिए मेरी आत्माओं, माय साउल्स प्लीज लिसन केयरफुली। स्ट्रैटेजी मींस अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। वापस वर्ड आते हैं, स्ट्रैटेजी मींस लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट और लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। आपको जो वर्ड यूज करना है कर दीजिए, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंज, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। वंस अगेन वर्ड लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ desired image, direction, destination of organization, desired image, direction और destination। तो अगर मैंने आपको बोला स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, ओके टेक्निकली एक चीज याद रखना, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन डिक्शनरी में ढूंढोगे उसमें भी नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में भी स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन नहीं है। स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन डिक्शनरी में खाली एक ही लाइन लिखी हुई है, इट इज टू समथिंग टू डू विथ वॉर। मारा मारी से कोई लेना देना है, स्ट्रैटेजी का मतलब है। और इसको और बेस्ट एग्जांपल समझना है तो शायद बाहुबली पिक्चर देखी होगी, देखिए क्या बाहुबली? देखो आज के डेट में बाहुबली, पुष्पा, यही ऐसी पिक्चर देखी जाती है। ओके मालूम है ना, वैसे ही बाहुबली मालूम है, देखा है क्या? टाइम हो गया, मतलब एक टाइम हो गया। ओके अगर आपको मालूम होगा अमरेंद्र बाहुबली, इफ यू फोकस ऑन बाहुबली 1 यू विल कम टू नो देयर वाज वन कालिके। मालूम है ना, कोई कालिके था, बाहुबली उनके महेशमती पे लड़ाई करने के लिए आया था। तो उन्होंने, अगर आपको याद होगा, उन्होंने उससे लड़ने के लिए त्रिशूल व्यू कंसेप्ट किया था। मतलब एक त्रिशूल व्यू, अभी त्रिशूल व्यू क्या मेरे को नहीं मालूम भाई, वो पिक्चर में बताया उन्होंने। त्रिशूल व्यू समथिंग, उन्होंने ऐसे त्रिशूल कुछ बना दिया ताकि वो आप मतलब जो भी लड़ाई करने वाला है दे कैन नॉट एंटर ओके इन द महेशमती प्रजा। दैट वाज अ कॉन्सेप्ट विद त्रिशूल व्यू, दैट वाज अ स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी उन्होंने कैसे डिसाइड की? बाय डूइंग द एनालिसिस। एक दिन पहले उन्होंने बुलाया भाई, उनको मालूम पड़ गया कौन खबरी था, किसने आया, वो खबरी को बुलाया। वो बोला भाई उनसे तुम लड़ नहीं सकते, उनके पास इतनी बड़ी सेना है, पर वो सेना किधर किधर है वो आइडेंटिफाई किया। फिर उन्होंने एक प्लॉट, ऐसा प्लॉट रखा, बोले इधर इधर सेना है, चलो एक काम करेंगे, इधर इस तरह से करेंगे। दिस वाज समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी? इट इज टू समथिंग टू डू विथ विनिंग द वॉर। इट इज टू समथिंग टू डू विथ विनिंग द वॉर। ओके देन टेक्निकली अब देखो ये पूरा स्ट्रैटेजी उन्होंने प्लान किया। तो क्वेश्चन ये है मेरा, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन मैंने पूछा, तो इट इज समथिंग टू डू विथ विनिंग द वॉर इज ओके,
but technically the answer should be, formal answer should be, strategy means long term or long range blueprint of organization, desired image, destination, direction, destination. Organization का desired image क्या चाहिए, organization का desired destination क्या चाहिए, और उनका direction क्या होगा. ये context is nothing but a strategy. आपको दो डेफिनेशन थोड़ी सी समान मिलेंगे, इवन स्ट्रैटेजी और विजन थोड़ा सा सिमिलर मिलते जाएगा, बट टेक्निकली डेफिनेशन वैसे ही रखे हुए हैं. मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मींस व्हाट? अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैनेजमेंट डज हैव टू डेफिनेशन. एवरीबॉडी सब इधर ध्यान दीजिए 2 मिनट. मैनेजमेंट दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है. फर्स्ट, ओके, टॉप मिडल लोअर, ये लोग क्या होते हैं? टॉप मिडल लोअर, एक ट्राइंगल बनाते हैं ना अपन लाइफ में, टॉप मिडल लोअर. ओके, ये लोग कौन है? टॉप को क्या बोलते हैं? टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं ना अपन. मिडल को क्या बोलते हैं? मिडल मैनेजमेंट. एंड लोअर को क्या बोलते हैं? तो टेक्निकली मैनेजमेंट वर्ड आ रहा है ना, तो मतलब मैनेजमेंट का एक मीनिंग ये है कि मैनेजमेंट मतलब पीपल. मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पीपल. और एक मतलब मैनेजमेंट का निकलता है, अगर आप देखोगे इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर मुझे कुछ काम करना है, स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, स्टेप 3 होता है, स्टेप 4 होता है, स्टेप 5 होता है. ये 5 स्टेप होते हैं. अगर ये 5 स्टेप एज इट इज फॉलो किया, क्या इसको भी हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं? यानी टेक्निकली मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपना जो सिलेबस है उसमें मैनेजमेंट मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट शब्द का मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट शब्द का मतलब होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन. इसीलिए आपको वर्ड याद होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन में पहला वर्ड क्या था? इट्स ए प्रोसेस. बट कौन सा प्रोसेस? मैनेजरियल प्रोसेस. यानी मैनेजरियल रिप्रेजेंट पर्सन एंड प्रोसेस रिप्रेजेंट स्टेप्स. तो हम यहां पर मैनेजमेंट के जो दो डेफिनेशन है ना, वो दोनों को इंक्लूड करके वी आर क्लोजिंग इट आउट एज ए डेफिनेशन फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ओके, ये दोनों कंबाइन हो गया और अपना क्या बन गया? एसएम. एसएम का फुल फॉर्म. और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फिर क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस है. अब मैनेजरियल प्रोसेस है मतलब मैनेजरियल इन्वॉल्व होना चाहिए. कितने लेवल मैनेजमेंट मैनेजरियल इन्वॉल्व होते हैं? 3. कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल. और ये जो काम करते हैं वो प्रोसेस के थ्रू करते हैं. और वो प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस के स्टेप्स क्या है? कितने? 5. देयरफॉर ये डेफिनेशन आता है. अब छोटा सा पॉइंट, मेरा क्वेश्चन है, 5वां स्टेप क्या था? इवैल्यूएटिंग एंड. व्हाई वी नीड टू इवैल्यूएट एंड टेक करेक्टिव एक्शंस? इंडिविजुअल माइक है, मेरे को इंडिविजुअल आंसर चाहिए. व्हाई वी नीड टू इवैल्यूएट एंड टेक करेक्टिव एक्शंस? आराम से जाइए. व्हाई वी नीड टू इवैल्यूएट एंड टेक करेक्टिव एक्शंस? ओके, आप बोल रहे हो? इम्प्रूव एफिशिएंसी. टू इंप्रूव एफिशिएंसी मतलब अपन ने अभी जो स्ट्रेटजी डाली वो एफिशिएंट नहीं है. नहीं, बट उसमें कुछ स्कोप होगा ना इम्प्रूवमेंट का. और स्कोप क्यों होगा इंप्रूवमेंट का? इसका मतलब अपन ने, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आप सबको समझ में आ रहा है आंसर? ओके, ये बोल रहे हैं इंप्रूव एफिशिएंसी, मैं बोला फिर अपन अभी एफिशिएंट नहीं है, वो बोला और स्कोप होगा. तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, जब मैंने स्टडी डिसाइड की थी, आई हैव ऑलरेडी डन द एनालिसिस ना. विच एनालिसिस? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनालिसिस किए थे मैंने, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट. तो मतलब वो एनालिसिस खराब किया मैंने. अगर आप बोल रहे हो और स्कोप बचा हुआ है, इसका मतलब द एनालिसिस इज रॉन्ग मैन. नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, वापस समझाता हूं. मेरे को बताओ, अगर मैं स्ट्रैटेजी डिसाइड करता हूं, डायरेक्टली स्ट्रैटेजी डिसाइड करता हूं या बेस्ड ऑन एनालिसिस? पक्का? एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस और नॉट? पक्का? परफेक्ट. ओके, तो बेस्ड ऑन एनालिसिस मैंने डिसाइड किया है. मैंने एनालिसिस किया, मेरे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, वर्ड बताया मैंने अभी, ये मैंने किया और मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड की. बेस्ड ऑन दैट स्ट्रैटेजी आई इंप्लीमेंटेड. अब आप बोल रहे हो इवैल्यूएट करो. इवैल्यूएटिंग का कारण बोल रहे हैं भाई यार, देयर नीड टू बी ए मोर एफिशिएंसी. मैंने बोला मोर एफिशिएंसी क्यों? मतलब अपन एफिशिएंट नहीं है. बोले देयर इज ऑलवेज ए स्कोप. इसका मतलब तो एनालिसिस अपन ने सही नहीं किया. फिर एनालिसिस में गड़बड़ हुई है, फिर स्ट्रैटेजी में थोड़ा ना गड़बड़ हुई है. डजंट मेक ए सेंस. तो ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन ग्राउंड मेरे को चाहिए, ग्राउंड का डिस्कशन. एक पीछे बोलिए मालिक. ग्राउंड का डिस्कशन टू रेक्टिफाई एनी एरर. हितेश भाई बोल रहे ऑनलाइन में, टू रेक्टिफाई एनी एरर. एनी एरर मतलब क्या? मतलब अच्छा, अगर आप मेरे को एरर बोल रहे हो तो इसका मतलब मैंने वापस क्या, किस में गड़बड़ किया? यानी अल्टीमेटली कहानी वापस किस पे आ रही है? एनालिसिस. एक मिनट. यस मैम. To check whether we are going in a right way or not, like to check whether we are going in right way or not, right direction or not. मतलब क्या, मतलब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है राइट डायरेक्शन के बेसिस पे ही लिया. नहीं, मतलब एफिशिएंटली हम सब काम मतलब प्रॉपर करते हैं कि नहीं वैसा. अच्छा, ये देखो एक वर्ड पकड़ लिया अपन ने, एफिशिएंटली.
ठीक है, एक भाई साहब ने एफिशिएंटली बोला, उसने भी एफिशिएंट बोला। ये वर्ड है ना, इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे चाहिए। इवैल्यूएशन के टाइम पे अपन एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इवैल्यूएशन समथिंग और एनालिसिस। पीछे उधर एक टू रीप आउट द अल्टीमेट इकोनॉमिक बेनिफिट, कि मिल रहा है नहीं। अच्छा, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, यानी एग्जांपल मैंने स्ट्रैटेजी बनाई होगी तो मैंने कुछ प्रॉफिट टारगेट्स रखे होंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके कहीं ना कहीं कैन वी एग्री ऑन दिस कि प्रॉफिट टारगेट अचीव हुए या दिस कैन बी ए ग्राउंड। ओके ठीक है, प्रॉफिट टारगेट अचीव हुए कि नहीं। और इधर भी आ रहा था, इधर माइक, एक बार माइक में आप दे दीजिए तोड़। ऑनलाइन में और क्या क्या आया, बिजनेस, एक आंसर आ गया है, ठीक है, आई विल डिस्कस ऑन दैट टू वेरीफाई दैट आवर गोल इज अचीव्ड और नॉट। यस भाई, मेहर भाई, शुभम, श्रुति, आपका आंसर सही है, लेकिन उसको मैं अभी बोल नहीं रहा हूं, 2-3 मिनट रुक रहे अपन। यस मालिक। whether our strategy was properly implemented or not. Whether to verify whether our strategy is properly implemented or not. Basically ये बेस्ट एग्जांपल कैन बी, वापस अपन ने टारगेट अचीव हुए कि नहीं। तो मेरे को ये बताओ, ओके मतलब टारगेट क्यों नहीं अचीव होंगे? अपन ने एनालिसिस किया यार, मैंने इतना अच्छा एनालिसिस किया यार, वी आर एक्सपर्ट इन एनालिसिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए एनालिस्ट, वी आर गुड इन एनालिसिस, वी डिसाइडेड द स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन analysis, we implemented, and now we are evaluating to see whether it is achieved or not. So why it will not be achieving? Dynamic environment. One of the biggest point you should understand, the environment in which you are interacting is not static. What is meaning of static? Same नहीं है। अब मेरे को बताओ, when I did the analysis, the environment was one kind of thing. आई डिसाइडेड कि कस्टमर की प्रेफरेंस ये है, कॉम्पिटिटर ये करेगा, लॉ रेगुलेशन में ये चेंजेस है, और भाई गवर्नमेंट ये पॉलिसी इतनी ही लाने वाला है। आई डिसाइडेड बेस्ड ऑन दैट, आई डिसाइडेड द स्ट्रैटेजी एंड आई इंप्लीमेंटेड, एंड वन पॉइंट ए कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज। कस्टमर से भाई साहब हम प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। डोंट यू थिंक क्लोथिंग में भी प्रेफरेंस कितने चेंज हुए रहेंगे? एक टाइम था, अगर आपको मालूम होगा, वो पुराने लोग बूट कट शूज पहनते थे, वो इतने बड़े बेल बॉटम, ओके, ओवर ए पीरियड भाई वो पतले पतले, क्या मालूम कितना पतला हो गया, भगवान जाने अभी। ओके, जो पैंट की साइज, वो शूज के इसमें, ये सारे एलिमेंट कितने चेंजेस है। वन पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूमर विल बी डिसाइडिंग, एंड हु इज अ भाई अल्टीमेटली हु विल बी परचेजिंग ए प्रोडक्ट? कंज्यूमर। कैन यू कंट्रोल द कंज्यूमर? मैं कंज्यूमर को बोल सकता हूं यही पेन, ये बोल रहा नहीं पहनना भाई। ओके भाई, चेंजेस है, तो किसमें चेंज हो रहा है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कौन कौन लोग होते हैं? कंज्यूमर। कैन कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज? अच्छा, क्या अभी पॉलिटिकल पार्टी में चेंजेस हुआ है? क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी चेंजेस आया है? ओके, आपने देखा होगा बहुत मेजोरिटी से जीते। हमें बताओ, बिकॉज ऑफ मेजोरिटी विनिंग, क्या पॉलिसी विल बी मोर रिजिड टुवर्ड बीजेपी? 100% यस। ओके, जब वो मेजोरिटी नहीं थी तब तक बीजेपी के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। डेफिनेटली उन्होंने अलायंस किया, पर अलायंस में भी तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है ना भाई। अलायंस में भी कितना रात, क्योंकि अलायंस एक बार टाटा बाय बाय बोला, किसी और का अलायंस हो जाएगा। तो अलायंस में वो तो अपने लास्ट 5 साल में देखा ही है ना। ओके, सरकारें गिरी है, उठी है, हर रोज सुबह उठते थे, नई सरकार, रात को सोते थे, टाटा बाय बाय, अरे मां कसम, वी हैव सीन दिस इन लास्ट 5 years. आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट पॉलिटिकल पॉइंट। नहीं है तो ऐसा हुआ है। अब इमेजिन करो, अब बीजेपी आई है, हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी। ओके, वी हैव डिसाइडेड स्ट्रैटेजी फ्रॉम शिवसेना पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, द थिंग्स चेंज। ओके, कैन पॉलिसी भी चेंज? अब ये पॉलिसी चेंज हुआ, कैन वी कंट्रोल दिस? बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड इसके लिए फिर हमने क्या करना चाहिए? इवैल्यूएट। अब मेरे को बताओ, इवैल्यूएट करना मतलब क्या? एनालाइज करना, इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, इसकी वजह से मेरी स्ट्रैटेजी में वापस वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। चेंजेस, यानी मेरा क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज वन टाइम एक्टिविटी और कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो मेरे को बताओ, 5वें पॉइंट के बाद क्या करना चाहिए? 5वें पॉइंट के बाद किधर आओगे वापस? अच्छा, 5वां पॉइंट क्या था? 5वां पॉइंट इवैल्यूएशन एंड टेकिंग। What is meaning of taking corrective actions? Coming back to analysis again. Okay, so doing the analysis again and taking corrective action means मतलब क्या? Strategy formation. वापस नया strategy बनेगा, वापस implement होगा, वापस evaluation। क्या ये एक टाइम एक्टिविटी होगी या कंटिन्यूस? अभी आप बोलोगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, 5 साल के लिए सरकार एकदम स्टेबल है। ओके, सरकार स्टेबल है, कंज्यूमर नहीं ना। अच्छा, 5 साल के लिए सरकार स्टेबल आ गई, क्या दूसरे कॉम्पिटिटर भी एंट्री नहीं करेंगे मार्केट में? करेंगे। ओके, क्या वो स्टेबल रहेंगे? कॉम्पिटिटर को ऐसे बोल सकते हो तुम बता, क्योंकि कॉम्पिटिटर को भी तो दिख रहा है मार्केट इज स्टेबल, पॉलिटिकल पार्टी इज स्टेबल, ये प्रोडक्ट बहुत सही रहेगा। दिस इज बिगेस्ट पॉइंट। तो मेरा क्वेश्चन, ओके, या मेरा क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल।
स्ट्रैटेजी बनाते वक्त क्या हमने एनालिसिस करना चाहिए? एकदम अच्छे से सारी आत्माओं, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त क्या मैंने एनालिसिस करना चाहिए? कौन सा एनालिसिस? स्वॉट को दो नाम अपने जो दिए, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड। ये एनालिसिस किए बिना स्ट्रैटेजी बनाई तो क्या दिक्कत है? एनालिसिस ही नहीं किया, स्ट्रैटेजी बना दी। हमने एनालिसिस ही नहीं किया, स्ट्रैटेजी बना दी। एग्जांपल, ओके, हमने कंज्यूमर प्रेफरेंस देखा ही नहीं और हमने प्रोडक्ट बना दिया। अगर आपको मालूम होगा ग्लास का मास्क, शायद सुना हो आपने, नहीं सुना है? ओके, मैं आपको एक दिन प्रोडक्ट दिखाऊंगा। भाई साहब आया था कहां पर? ओके, शार्क टैंक इंडिया में, अगर आपने देखा होगा। और वो बंदे की इतनी भयंकर बेइज्जती की। ओके, बोले इतना वाहियात प्रोडक्ट बनाया है, बट टेक्निकली मैंने कसम से बोल रहा हूं, वो शार्क टैंक में आने के बाद मैंने वो प्रोडक्ट मंगाया। मैं बोला देखता हूं, फिर समझ में आया कि भाई प्रोडक्ट भंगार है, क्योंकि उसका टेक्निकल पॉइंट वो फ्लेक्सिबल भी नहीं था और हर ग्लास पे नहीं आना था। और वो ग्लास का मास्क था। कंटेक्स्ट क्या था मालूम है? अपन बाहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, कांच की ग्लास में पानी पीते हैं। ओके, वो कोविड के टाइम पे अगर आपको मालूम होगा तो वो झूठा पिया, वापस किसी को है वो इन्फेक्शन होने की चांसेस। तो भाई साहब ने बोला मुंह पे मास्क लगाने की जगह ग्लास पे मास्क लगाओ। ग्लास पे ऐसा कुछ तो उसने प्लास्टिक का बनाया और फिर पानी पीते वो ग्लास पे लगाओ, पियो, वापस निकालो, दो और लगाओ, वापस अगली बार पियो, लगाओ। मां कसम, ये वाहियात प्रोडक्ट बोला गया है शार्क टैंक में। फिर मैंने मंगाया, फिर मैंने देखा, फिर मालूम पड़ा वो हर ग्लास में लगता भी नहीं है। यानी एग्जांपल, मैं एक होटल में जा रहा हूं, उसका एक ग्लास, एक टाइप ऑफ ग्लास होगा, दूसरे होटल में जा रहा हूं, एक टाइप ऑफ ग्लास होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास में ही नहीं लग रहा है। और फिर बाद में मेरे को समझ में आया दो चीज है। सबसे पहला पॉइंट, मेरे को बताओ जिसको ग्लास के मतलब जो ग्लास का नहीं, इफ आई एम सेइंग, अगर कोई स्टील के ग्लास में पी रहा है या कांच की ग्लास में पी रहा है, मेरे को ये आप बताइए, ओके, अगर उसको लगता है इन्फेक्शन का डाउट है तो वो किस पे शिफ्ट होएगा? बॉटल पे होएगा या पेपर पे होएगा? आई होप एवरीबडी एग्री। ओके, अगर मैं बोलूंगा भाई यार मैडम बोल रहे नहीं इट्स मतलब नीचे चाय पीने गई मैडम ने बोला एक आधा कप चाय देना। ओके, वो ग्लास वास मालूम है ना आपको? मालूम है नीचे चाय पिए होंगे ना, वो ऐसे ग्लास देगा, वो आदमी ऐसे 5 उंगली डालेगा, 5-7 ग्लास पकड़ेगा, फिर एक पानी में डालेगा, फिर पानी को उल्टा करेगा, दूसरे पानी में डालेगा, उल्टा करेगा और वापस ग्लास रखेगा और इसमें चाय भरेगा। मैडम ने कहा, मैडम बोला नो 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 नो। ओके, अब मेरे को बताओ मैडम किस पे शिफ्ट होगी? अभी इमेजिन करो मैडम बोल रही है नहीं इसमें ही पीना है। ओके, ग्लास का मास्क एंड डजंट मेक ए लॉजिक। ओके, एंड टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी ग्लास में पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये याद रखना। ओके, जो ये बोलते हैं ना नो आई विल नॉट ड्रिंक, समझ में आ रहा है? वो उनका इम्यूनिटी का प्रॉब्लम रहेगा रे भाई। ओके, आपको मैं बता रहा हूं, ऐसी जगह चाय पीना, ओके, कुछ जगह पानी पूरी खाना, समझ में आ रहा है? वो पानी पूरी समझ में आ रहा है? ऐसी जगह पानी पूरी है जिधर पीछे तो कुछ तो है। ये बॉडी की इम्यूनिटी, और मैं कसम से बता रहा हूं, मतलब, और ये मैं खाली बोलने के लिए आई ऑल्सो मैं भी, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आप होटल में पानी पूरी खाइए और वैसी जगह पे पानी पूरी खाइए, आई एम टेलिंग यू टेस्ट उधर बेटर होगा। आगे अब आप बोलोगे सर बीमार होगा, तो ठीक है, जिस दिन बीमार होगा घर का खाना खाइए, बाहर का मत खाइए। ओके, बट टेक्निकली आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ग्लास का मास्क बंदे ने बनाया बिना एनालिसिस किए। उसने खुद ने सोचा मैं बहुत भारी प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसने सोचा भाई यार ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन चलेगा, क्योंकि आज तक किसी ने दुनिया में किसी ने बनाया नहीं। अरे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भाई साहब, यानी टेल मी वन थिंग, यानी बेसिकली टू डिसाइड ए स्ट्रैटेजी विदाउट एनालिसिस विल बी मेकिंग, मतलब आप सुसाइड करने जैसा हुआ यार। मेरे को बताओ, कस्टमर प्रेफरेंस पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? कंज्यूमर के चॉइसेस देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? क्या पॉलिटिकल इश्यूज देखने चाहिए? क्या लीगल रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए? चलो एग्जांपल, कस्टमर के लिए भाई कुछ तो आपने बहुत बेहतरीन बनाने का सोचा, लेकिन एट द सेम टाइम लीगली वो अलाउड नहीं है। ओके, आपने देखा होगा अभी पुणे की आज की न्यूज में भी आया है, 1-2 दिन पहले, मतलब एक बेहतरीन ड्रग्स का पैकेट पकड़ा गया। बेहतरीन मतलब इंटरनेशनल ड्रग्स का पैकेट। ड्रग्स आर वर्स्ट फॉर द सोसाइटी। अब उसमें कोई एक क्वेश्चन आता है, मेरे को एक क्वेश्चन पूछता है एक बंदा, सर फिर वो साउथ अफ्रीका में क्यों बिकता है? ओके, वो यूएस में क्यों बिकता है? अगर वो इतना ही खराब है तो किधर बिकना नहीं चाहिए? ठीक है भाई, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ओके, मेरा एक ही जवाब होगा, जो चीज अपने मेंटल स्टेटस को हार्म करती है दैट इज नॉट करेक्ट। बस मेरा इतना सिंपल पॉइंट है। ओके, मेंटल स्टेटस को हार्म करती है, समझ रहे हो? मतलब वो पीने के बाद आपकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, इसका मतलब वो खराब है। इट मे बी लिकर फॉर्म, इट मे बी ड्रग्स फॉर्म, बट
टेक्निकली हमने डिसाइड किया ड्रग्स का बिजनेस चालू करते हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंस है, एक बड़े बड़े वाले लोग मालूम ना एकदम प्रीमियम पीपल, दे कैन पे एनीथिंग। ओके, मैंने उसके लिए ड्रग्स का बिजनेस। अब मेरे को बताओ, विदाउट एनालिसिस मैंने चालू किया, लीगली ये बैंड होगा ना? चलो ये मैं थोड़ा सा एकदम वियर्ड आंसर बोल रहा हूं, वियर्ड कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, लेकिन डोंट यू थिंक इट मे हैपेंस इन ड्रग्स आल्सो? ड्रग्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग, द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन्स, I may use certain medicines which may be banned legally, but which may be very helpful for you. मतलब आपको ऐसा बहुत अच्छा लग रहा होगा, उसकी वजह से बीमारी से बहुत अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ओके अब इसको कौन ध्यान रखेगा? R&D, लीगल, ये सारा देखना पड़ेगा। मेरे को बताओ, क्या डायरेक्टली चालू करना चाहिए या ये सब एलिमेंट्स देखने चाहिए? इसको हम बोलते हैं एक शब्द, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? यानी हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई, इट इज बेस्ड ऑन, अच्छा मैंने स्ट्रैटेजी डायरेक्टली बनाई या पहले एनालिसिस किया? तो मेरे को बताओ, अगर मैं एनालिसिस करता हूं और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाता हूं, इसको हम क्या नाम देंगे? प्रोएक्टिव। कंज्यूमर से प्रेफरेंस पूछिए, आपको कैसा चाहिए, कैसा चाहिए प्रोडक्ट, कैसा चाहिए। लीगल लॉयर का लीगली देखा, पॉलिटिकल इंपैक्ट देखा, सोशियो कल्चरल देखा, हमने बिलीफ देखा, डेमोग्राफिक देखा, हाउ मच एजुकेशन इज देयर, कौन सी स्टेट में कितना एजुकेशन है, कौन से स्टेट में कहां पर बेहतरीन कर सकते हैं। वी हैव आइडेंटिफाइड दिस एंड आफ्टर दैट ओनली वी हैव लॉन्च द प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। लेकिन माय क्वेश्चन, एनवायरमेंट रिमेन स्टेबल और इट इज डायनामिक? तो मेरे को बताओ, अगर एनवायरमेंट में चेंज आया, कस्टमर का प्रेफरेंस पहले ये था लेकिन चेंज हो गया भाई। अरे टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होता है, रोज चॉइसेस चेंज होती है। इंस्टाग्राम में एक रील देखने के बाद एक कच्चा बादाम अच्छा चला, लेकिन अगले दिन देयर विल बी अ डिफरेंट एलिमेंट, गुलाबी साड़ी, फिर गुलाबी साड़ी के बाद देयर विल बी सम अदर एलिमेंट, बिकॉज चॉइसेस आर चेंजिंग। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड। तो मेरे को बताओ, कस्टमर का चॉइसेस चेंज हो गया, फिर भी मैं उसको पुराना प्रोडक्ट बेचूंगा क्या? क्या मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा ना? तो क्या करना चाहिए मैंने? ओके, इवैल्यूएट करना चाहिए और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेनी चाहिए। इसको मैं बोलता हूं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी दो तरह की होती है, स्ट्रैटेजी दो तरह की होती है। कौन सी? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड और एक है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। मेरे को आप बताइए कौन सी बेस्ट है? कौन सी बेस्ट है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? कौन सी बेस्ट है? कौन सी बेस्ट है? ऑनलाइन पढ़ लो, कौन सी बेस्ट है? ओके, इधर तो ये लोग बोल रहे दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट, प्रोएक्टिव भी रिएक्टिव भी। अच्छा, प्रोएक्टिव अच्छी, मतलब तुम बोल रहे हो रिएक्टिव होना जरूरी है, प्रोएक्टिव को कमी कमी बता रहे हो, तुम बोल रहे हो प्रोएक्टिव तू कम है। मेरे ख्याल से तो मेरे को ऐसा लग रहा है प्रोएक्टिव बेस्ट है। डिपेंड्स वाला कौन था? ओके, माइक 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 इधर, माइक माइक। डिपेंड्स वाले के कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करते हैं। चलो मालिक, डिपेंड्स वाले। और ऑनलाइन पढ़ लोग आप लिखो, मैं देखता हूं कौन सा उसमें कौन सा पॉइंट आता है आपके इसमें से क्या है। ओके, श्रुति जी का आंसर एक बराबर है, बढ़िया। यस मालिक, डिपेंड्स। नहीं चालू है? हाँ बोल बोल बड़ी। ठीक है, मेरे को भी बोलना पड़ेगा, वो माइक के इसको अभी तोड़ेंगे कल अपन, हम डिसाइडेड है। अगर कल अगर नहीं हुआ मतलब यस, बोल बोल, मैं रिपीट कर। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके लिए कुछ कॉम्पिटिंग करना होगा, तो इसके लिए हम कौन सा करेंगे? प्रोएक्टिव। ठीक है, दूसरा चेंजेस करना है। तो एक आंसर आया कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च्ड है और उसमें चेंजेस करना है, तो डायनामिक एनवायरनमेंट की वजह से इसके लिए हमको रिएक्टिव। ओके, ये वाला पॉइंट है। बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस, मुकेश भाई बोलते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। श्रुति जी बोलती है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। मेरे ख्याल से आई होप सबको ऐसे जैसे आपने बोला दोनों, क्योंकि अगर एक भी रहा तो गलती हो रही है। अभी एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं। सर ने क्या बोला? सर ने बोला कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो प्रोएक्टिव। मालूम, इमेजिन करो मैंने प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, सब कुछ किया, सब करने के बाद आई लॉन्च दैट प्रोडक्ट एंड वंस आई लॉन्च्ड, ओके, लीगल banned. Legally it is banned. There is change in laws and regulations. Okay, can you control that laws and regulations? Okay, not at all. A best example, EIS था ना? Okay, EIS था ना? EIS करके एक सब्जेक्ट था, मालूम है ना सिलेबस में? EIS and SM, EIS था ना? अपन तोड़ थे EIS में। Okay, क्या किया अपन ने? मैं जाके इंस्टीट्यूट बोला, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट बोला तो point to be noted, which environment I can control? Internal. I cannot control external. तो मेरे को बता, प्रोडक्ट लॉन्च किया, ओके, इमेजिन करो जिस दिन EIS निकला उसी दिन मैंने लॉन्च किया,
मॉर्निंग में बैच अनाउंस की, EIS बैच इन नेक्स्ट वीक, इवनिंग में इंस्टीट्यूट बोलती है EIS इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम नेक्स्ट अटेम्प्ट. नाउ टेल मी, ओके सर, नाउ टेल मी, प्रोएक्टिवली गया था मैंने सबको पूछा, अरे भाई कौन सा बोले सब्जेक्ट बहुत प्रॉब्लम है, EIS प्रॉब्लम है, EIS प्रॉब्लम है, प्रोएक्टिव गया पूरा. लेकिन अगले ही दिन लग गई ना, अगले ही दिन लग गई. अब क्या करने का, बिजनेस बंद कर देने का? नहीं, क्या करने का, नया कुछ चालू करने का ना भाई. क्या करने का, एनवायरमेंट को स्टडी करने का. एंड देन आई स्टार्टेड विथ SM. ओके, SM पहले ही नहीं था, मतलब लॉजिक, मतलब कॉन्टेक्स्ट है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो मेरे को बताओ, खाली प्रोएक्टिव चलेगा, खाली रिएक्टिव चलेगा? क्या होना चाहिए? उसको बोलते हैं ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. क्या बोलते हैं? ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. एंड वन मोर थिंग, मेक इट श्योर ये क्लियरली रहे. मैं जब लिखाऊंगा, मैं खुद आपके साथ लिख रहा हूं, मतलब मैं जब लिखूंगा मैं खुद लिखूंगा, बट मेक श्योर अगर आपको स्पेलिंग का कहीं पर भी डाउट आ रहा है, प्लीज डू चेक इट आउट. मैं बोलते रहूंगा, मैं प्रोनाउंस भी करता हूं, मैं लिखता भी साथ में. ओके, बट मेक श्योर स्पेलिंग में एरर हुआ, आई एम मतलब मैं आपको एक इमीडिएट बताना इज वेरी अर्ली ऑन दिस स्टेज, बट आई एम टेलिंग यू, स्पेलिंग एरर मार्क्स पूरी तरह कट जाएंगे. ग्रामेटिकल एरर फेयर इनफ. ग्रामेटिकल एरर कुछ हुआ ना, एन का ए का एन, ये हुआ ना, एक बार सस्टेन हो जाएगा. बट अगर स्पेलिंग एरर हुआ, मैं तुमको बता रहा हूं, गया. और प्रॉब्लम ये है, नाउअडेज यू आर ऑलरेडी अवेयर, पेपर इज चेक्ड थ्रू मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली. आई होप सबको मालूम है, पेपर इज नेवर चेक्ड मैन्युअली नाउ. यानी एक चार्टेड अकाउंटेंट एक सिस्टम पे बैठा हुआ है और वहां पर वो चेक कर रहा है. अर्लियर व्हेन पेपर यूज्ड टू चेक, तो वो क्या था मालूम है क्या? किधर रख दिया मैंने? अबे वो पेन नहीं रे, इसका पेन. अबे क्या कैसा आदमी है बे? कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो गया ना रे? दिख रही है, इधर है क्या? अरे इधर. थैंक्स बड़े. दिस इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस. मतलब कि व्हाइट है ना, तो दिख नहीं रहता. तो ठीक है, तो मैं ये बता रहा था. ओके, इन एग्जामिनेशन पेपर, अगर आपने पेपर मंगाया भी होगा तो आपको इधर थियरी आपने लिखी होगी. पहले क्या होता था, एग्जामिनर यूज्ड टू हाईलाइट कि ये गलत है, ये गलत है. अभी वो हाईलाइट ही नहीं होता, बाजू में सिर्फ ऐसा आता है. ओके, ये पेपर केस में बाजू में ऐसा आता है, इधर 0 मार्क्स. अब वो 0 क्यों दिया ये नहीं मालूम है. रीजन सिंपल, स्टेप वाइज मार्क है ना, तो स्टेप वाइज मार्क की वजह से 0 आ जाता है. तो स्पेलिंग एरर में वो 0 नहीं देगा, बट स्पेलिंग एरर में मार्क्स काटेगा. तो सबसे पहला ध्यान याद रखना, किस पे ध्यान रखना? स्पेलिंग. तो अगर कोई भी बंदा, इट मे हैपन दैट मैक्सिमम विल बी वेरी गुड विद इंग्लिश एंड स्पेलिंग पॉइंट, बट देयर विल बी सम स्टूडेंट्स विल नॉट बी फेयर इनफ विद स्पेलिंग. डू टेक केयर विद स्पेलिंग, सर मालिक. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, ओके, द प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, विच स्ट्रेटजी शुड बी? वर्ड इज ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव. तो कोई मुझे प्रोएक्टिव समझाएगा? डेफिनेशन, प्रोएक्टिव का डेफिनेशन, प्रोएक्टिव का डेफिनेशन. अरे आपको अगर मैं आंसर बोल रहा हूं, मेरे को बताओ स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? आंसर क्वेश्चन ही पूछा मैंने, हाउ शुड बी स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव. आंसर लिखो ना, बताओ ना फिर आंसर क्या लिखोगे. प्रोएक्टिव में क्या लिखोगे? इन प्रोएक्टिव वी विल एनालाइज एनवायरमेंट फर्स्ट. विच एनवायरमेंट? टू एनवायरमेंट, एक्सटर्नल खाली नहीं, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट, ये एनालिसिस करेंगे. एंड आफ्टर दैट विल बी डिसाइडिंग ऑन स्ट्रेटजी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिएक्टिव? What will do? Reactive? Analyze environment? No. Any changes in environment? Any changes in environment? It may be consumer preferences, it may be legal issues, it may be political issues. We will consider and redesign the strategy. Is called reactive. And the company should be having which strategies? Blend of proactive and reactive. I hope everybody clear? Pakka? Pakka? Any doubt? Pakka ना? तो स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों में से बेस्ट कौन है? प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों में से बेस्ट कौन है? अभी ब्लेंड मत देना, तो क्वेश्चन जो पूछा ना उसको आंसर करो. अभी आप मत बोलना ना सर ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव. आई एम आस्किंग प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव व्हाट इज बेस्ट? प्रोएक्टिव इज बेस्ट, रिएक्टिव इज नेवर बेस्ट. व्हाट इज बेस्ट? प्रोएक्टिव. अब मेरे को बताओ, प्रोएक्टिव रहा मतलब सबसे पहले स्टेप मैं लूंगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मुझे मिलेगा, ये सारी कहानी आ जाती है. तो टेक्निकली ओके, आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट आपके लिए सबके लिए क्लियर है मालिक. ठीक है,
छोटा सा पॉइंट, छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे के लिए बताइए. प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ओके, वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन क्लोज इट आउट ऑन दैट बेसिस. जब मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोल रहा हूं, ओके, या मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, एक लाइन याद रख लेना, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस. क्या बोला मैंने? स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी, यानी स्ट्रैटेजी में कमियां कभी होगी नहीं, ऐसा है ही नहीं. स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड की है, पर क्या स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है? यस. स्ट्रैटेजी में भी एग्जांपल, अपन ने अभी एग्जांपल डिस्कस किया, मैंने बताया ईएस चालू करूंगा और रात को न्यूज आई ईएस निकल गया, तो टेक्निकली स्ट्रैटेजी में फेल. स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस, ये याद रखिए. स्ट्रैटेजी मतलब जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी में हमें मैनेजमेंट की जरूरत है. मैनेजमेंट मतलब पर्सन. स्ट्रैटेजी तो डिसाइड करना एक काफी है, लेकिन हमें एक पर्सन चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. वो क्यों होना चाहिए? अब भले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करो, लेकिन यू रिक्वायर अ वन पर्टिकुलर पर्सन हु विल बी वेरी इंटेलिजेंट और एंटरप्रेन्योर स्किल्स, हु विल बी एंश्योरिंग दैट स्ट्रैटेजी रिमेन्स एक्यूरेट और करेक्ट. द रीजन इज सिंपल, ओके, हु विल अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट में चेंजेस हुआ है एंड नीड टू बी अडेप्टेड. तो अगर एनवायरमेंट में चेंजेस हुआ है और इमीडिएटली स्ट्रैटेजी में चेंज करना है, कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, मेरे को बताओ, रिएक्टिव का मतलब क्या था? रिएक्टिव का मतलब क्या था? चेंजेस कहां पर? चेंजेस कहां पर? एनवायरमेंट में. चेंजेस कहां पर? एनवायरमेंट में. आई होप ये क्लियर है मालिक. वापस आवाज नहीं आ रही. चेंजेस एनवायरमेंट में चेंजेस होंगे. एनवायरमेंट में चेंजेस हुआ तो क्या हमें अडेप्ट करना पड़ेगा? क्या अपने आप अडेप्ट होगा या कोई पर्सन होगा जो अडेप्ट करवाएगा? इसीलिए याद रखना, स्ट्रैटेजी इज नेवर ए सब्स्टिट्यूट. कान खुले. स्ट्रैटेजी इज फॉर साउंड मैनेजमेंट. फॉर साउंड मैनेजमेंट, यानी आप बोलोगे मेरे पास बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, डोंट वरी, मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा, लेकिन अगर चेंजेस आ गया तो उसको अपडेट कौन करेगा? उसको चेंज कौन करेगा? दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. तो दो लाइन आप ध्यान रखना. पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस, यानी स्ट्रैटेजी में फ्लॉ नहीं होगा. फ्लॉलेस बोला मैंने. स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस. इंग्लिश को पकड़ो. स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी, व्हाट डज इट मीन? मतलब फ्लॉ हो सकता है. फ्लॉ हो सकता है मतलब स्ट्रैटेजी में फेल हो सकती है ना. एंड सेकेंड, ओके, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट, अलर्ट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट. यानी आपको स्ट्रैटेजी कितनी भी बेहतर रही, स्ट्रैटेजी कितनी भी बेस्ट रही, आपको कौन चाहिए? साउंड मैनेजमेंट, अलर्ट मैनेजमेंट, तोड़ मैनेजमेंट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक. तो दो चीज कभी भी याद रखना, एमसीक्यू के लिए मैटर करेगा. पहला पॉइंट एमसीक्यू के लिए, स्ट्रैटेजी कैन बी फ्लॉलेस. करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट या इनकरेक्ट? स्ट्रैटेजी कैन बी फ्लॉलेस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लॉलेस? पहले तो यही समझा है क्या? मतलब फ्लॉलेस मतलब उसके अंदर फ्लॉ नहीं होगा. तो इंग्लिश क्या है? स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस और स्ट्रैटेजी कैन बी फ्लॉलेस? कैन नेवर बी फ्लॉलेस. एवरीबॉडी क्लियर? इसको ध्यान रखना. स्ट्रैटेजी कैन रिप्लेस द मैनेजमेंट, अलर्ट मैनेजमेंट. फॉल्स. स्ट्रैटेजी कैन नेवर रिप्लेस अलर्ट मैनेजमेंट. आपको अलर्ट मैनेजमेंट की जरूरत ही पड़ने वाली रहेगी. भारत माता की जय. छेपा मलिक. तो पहला स्ट्रक्चर आप क्लोज कर सकते हैं. तो सबसे पहले मेरे को एसएम का डेफिनेशन बताइए. आराम से कुछ चैप्टर 1 का कंटेंट है, आराम से फ्लो करिए. चैप्टर 1 का कंटेंट है. पहला एसएम का डेफिनेशन, मैनेजरल प्रोसेस ऑफ क्या? अच्छा याद ही नहीं है. ऑफ डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपन जब आंसर के पॉइंट पे जाएंगे, लेकिन लॉजिक याद रखना. डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट. थर्ड, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. ये जो मैंने आपको समझाया ये एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ एसएम है, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट ने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके किया हुआ है. तो इंस्टीट्यूट ने कैसे किया हुआ है ध्यान दीजिए. आत्मा इधर मेरे पास एसएम का डेफिनेशन, इट इज अ मैनेजरल प्रोसेस. मैं वापस बोल रहा हूं, जो मैंने आपको D1 पे बताया था या मैं अभी बता रहा हूं, मैं बता चुका हूं या अभी आपने रिपीट किया है. दिस इज रिक्वायर्ड, इसको भूलना नहीं है. लेकिन डेफिनेशन के लिए अपने को कुछ चीजें और ध्यान रखनी पड़ेगी. एसएम, इट इज अ ऑफ डेवलपिंग विजन, मिशन नहीं है. सेकेंड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. यानी इंस्टेड ऑफ एनालिसिस इन्होंने डेफिनेशन में क्या डाल दिया? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. एनालिसिस नहीं बोला इन्होंने. तो पर टेक्निकली इट इज डीम्ड नाउ कि ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करेंगे? बाय बेस्ड ऑन एनालिसिस. तो सेकंड पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड पॉइंट क्या नाम था? फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी. इधर नाम दिया है क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी. क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी. आई होप क्लियर है मालिक. और उसके बाद उसको क्या करने का? इंप्लीमेंट, इवैल्यूएट एंड करेक्टिव एक्शंस. आगे की कहानी सेम है. तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है. एंड अगर मैं एसएम के स्टेजेस बोलूंगा तो उसका जो मैंने आपको आंसर समझाया है वो आपके लिए आंसर रहेगा चैप्टर 5 में. तो अभी अपन क्योंकि चैप्टर 1 का मेरे को कॉन्सेप्ट करवाना है,
तो एक आंसर को अपन लिख लेते हैं। तो पहला आंसर अपन जो क्लोज करेंगे लिखने के लिए, और टेक्स्ट बुक का कहीं पर भी आप कॉन्सेप्ट मत रखिए, ओके। यानी अगर आपको पढ़ने को टाइम है आप पढ़ते रहिए, ओके, आप अपने हिसाब से करते रहिए, आपको करना है तो मैं आपको सारा का सारा फ्लो कराऊंगा, सारा का सारा टेक्स्ट बुक का फ्लो पूरा कंटेंट हो जाएगा। वॉल्यूम 2 पूरा क्लास में खत्म हो जाएगा, और वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 क्या है अपनी? वॉल्यूम 3 क्या है? कंपाइलर, मालूम है ना? अच्छा, 3 वॉल्यूम मालूम है कि नहीं मालूम है? 3 वॉल्यूम का रोज कौन सी वॉल्यूम लानी है? जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा मैं बोलूंगा अभी ये चैप्टर एंड हुआ है, अगले दिन कंपाइलर नहीं वॉल्यूम 2, अगले दिन कंपाइलर नहीं वॉल्यूम 1 भी नहीं। वॉल्यूम 1 तुमको आंसर दिखना रहा तो आप, अदरवाइज आप रिवाइज करने के बाद डायरेक्टली इधर आने का, डिस्कशन करने का, काम खत्म। एवरीबॉडी क्लियर? और उसके बाद वॉल्यूम 3 मैं आपको बताते जाऊंगा। अब जैसे अभी ये एग्जांपल है, ओके, आप यहां पर आइए, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एग्जांपल समझा रहा हूं, एक थोड़ा सा मॉडल को समझिए मेरे, क्योंकि ये थियरी है। आप जो सुबह बैठ रहे होगे वो प्रैक्टिकल है, या आफ्टरनून में बैठ रहे हो वो प्रैक्टिकल है, उसमें नो नोटबुक कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहेगा। उसका नो नोटबुक कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्योंकि इधर क्वेश्चन दिया है अपने को सॉल्व करना है, इधर मेरे को कैसे रिवाइज करना है वो आप मेरे हिसाब से समझिए, एक बार ट्यूनिंग आने दीजिए। ट्यूनिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अभी जैसे पेज नंबर 1.1 मिल रहा है सबको, तो 1.1 पे आपको कंटेंट मिला, 1.2 पे भी आपको कंटेंट मिला क्या मालिक? अभी यहां पर मैं इसको कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं आज, ये मेरा काम अभी, मेरा हाल फिलहाल डिस्कशन नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये डीम नहीं कि आपने रीड करना है, आपको रीड करना है आप कर लीजिए, कॉन्टेक्स्ट है भाई, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, लेकिन जिस दिन मैं इस फ्लो में आऊंगा उस दिन मैं ही कराऊंगा, ओके। और चैप्टर वाइज सब कुछ स्ट्रक्चर अपने आप फ्लो में बैठेगा। तो राइट नाउ चैप्टर 1 में से मेरे को एक कॉन्सेप्ट चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। चैप्टर 2 से मैं 2 कॉन्सेप्ट उठाऊंगा जो मैं आपको समझाऊंगा, फिर ही मैं चैप्टर 4 पे चलूंगा और चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर चैप्टर 4 खत्म होने के बाद विल शिफ्ट टू चैप्टर 1 और चैप्टर 3 भी, दोनों में से आप जो स्ट्रक्चर बोलोगे वो अपन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर एनालिसिस में जाएंगे। आपने बोला सर सीक्वेंस तो एनालिसिस का है ना, सीक्वेंस होने दो ना, इसका स्ट्रक्चर अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चर वाइज रखना है मालिक। अब टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका क्लास में खत्म हो जाएगा, क्लास में सब कॉन्सेप्चुअली बैठ जाएगा, पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है रटना काफी, रट के प्रॉब्लम क्या आएगी, रट तो लोगे लेकिन लिखोगे वही वापस, पर अपने को वैसा लिखना नहीं है, अपने को क्वेश्चन कैसे लिखना है वो ध्यान रखना है, ओके। तो वॉट एवर वी आर राइटिंग राइट नाउ इट विल बी ए बेस, इट विल बी ए बेस, ओके, बेस। एग्जांपल 1.2 पेज पे आइए सब लोग, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो वो नोटबुक में पेज लेके लिख लेना भाई, बाद में लिख लेना, ओके। पर 1.2 पेज में ये क्या लिखा है, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, समझ में आया? ओके, उसका एक मीम देख सकते हो आप, ये कॉमन मीम है, ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है, ओके। यानी प्रोएक्टिव रहता है आदमी लेकिन रिएक्ट करता है जब एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस मीम, ओके। और जिसको मीम नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ऐसा एक आध दो होते रहता है जिंदगी में, ओके, जैसा हो सकता है किसी, और ये पॉइंट है। तो सर ये क्या बनाना है हमें एग्जाम में? अगर हमने इसको बनाया अगला आइटम वापस आया ओके, तो ध्यान रखिए मीम वाले पॉइंट है इज ओनली फॉर ह्यूमर एंड अदर थिंग्स, ओके, वो जस्ट अपने ऐसे जोकिंगली वो पॉइंट रहता है, और मेरे को ऐसा थोड़ा मजा आता है मीम के कंटेक्स्ट में, ओके। अब क्वेश्चन ये है, जब हम आज का पहला आंसर अपन जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं ये स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, और इसके ऊपर वाला जो अपन ने डिस्कस किया वो दोनों पॉइंट अपन लिख रहे हैं, ये अपन क्लोज करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना बुक्स में जो लाइंस होंगी, पेजेस होंगे, जो पेज छोड़ा हुआ रहेगा, एग्जांपल आपको ऑलमोस्ट 1 पेज मिलेगा, 1.5 पेज 2 पेज मिलेगा, स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव, इतना बड़ा आंसर नहीं है वो है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन किसी की राइटिंग बहुत भयंकर बड़ी होगी, समझ में आ रहा है, और किसी की राइटिंग चीटी जैसी होगी, जिसकी चीटी जैसी होगी उसका ऑल टुगेदर फटफट खत्म हो जाएगा, यानी उसके बाद ऑलमोस्ट आधा पेज बचेगा उसके लिए। यानी जब मैंने पेज खाली छोड़े हैं तो मैंने, देखो प्रैक्टिकल में किसी की भी राइटिंग कैसी भी रही तो उसका आंसर वैसे ही बनता है, थियरी में वैसा नहीं हो सकता ना। थियरी में लिखने का एक लाइन में कोई 10 वर्ड लिख सकता है और एक लाइन में 4 वर्ड में भी खत्म कर सकता है, तो आई कंसिडर एवरीवन। और इसके बाद भी अगर आपको पेज कम पड़ रहा है, राइटिंग को चेंज करो, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं कसम से बोल रहा हूं मैंने, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब अगर 60% पोर्शन पेज छोड़ना था उसको मैंने 100 किया, तो पेजेस में होलसेल में, ओके, और पेजेस के कंटेंट में आपकी क्वांटम एकदम जबरदस्त रहेगी, तो आप उस पेजेस के इसमें से टेंशन मत दीजिए, ओके, स्ट्रक्चर वाइज ध्यान रखिए। अब मेरे को आप बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, इसके आंसर में कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ब्लेंड ऑफ
प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। आई होप ये क्लियर है मालिक। तो पहला आंसर तो अपन ये लिखेंगे, स्ट्रेटजी शुड बी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव। मेरा क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे आना चाहिए फिर। बुक नहीं है ना, पेज नंबर 1.2 है बेटा, 1.2 पेज नंबर, जो बुक्स नहीं पहुंची पेज नंबर 1.2 में है। तो मेरे को बताओ आंसर कैसे लिखोगे, कुछ तो बताओ। पहले दोनों का इंट्रोडक्शन, किसका दोनों का इंट्रोडक्शन? प्रोएक्टिव समझाएंगे, फिर रिएक्टिव समझाएंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? और उसके बाद क्या बोलेंगे? ओके, फिर क्या करेंगे? ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों होना जरूरी है? एक ही रीजन है, खाली प्रोएक्टिव भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा और खाली रिएक्टिव भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। तो आपको प्रोएक्टिव के साथ में आपको करेक्टिव एक्शंस लेने जरूरी है, एंड दैट्स हाउ द कांसेप्ट विल वर्क। आई होप जीपिंग मालिक। ओके, तो इसमें आप पहले पेज में लिखोगे 1.2 में, आप देख लीजिए स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव रिएक्टिव। मिला क्या मालिक? ओके, सबसे पहले इसके बाजू में लिखो। ओके, और ये लिखोगे आप ब्लू कलर से, मॉडरेट है। मैंने आपको 3 कलर बोले हुए हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक। मैं इंश्योर करूंगा वो तीनों के तीनों बराबर, मेरा भी कलर कॉम्बिनेशन वैसे ही रहेगा। ओके, स्क्रीन पे अगर किसी को दूसरा कलर दिखा होगा तो उसका कलर का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ये ब्लू वाला पॉइंट है। और इसके ब्रैकेट में लिखोगे नवंबर 23 एंड आरटीपी मई 23। यानी ये क्वेश्चन अपने पूरे हिस्ट्री में नवंबर 23 के पेपर में जा चुका है। ओके, 4 मार्क के लिए, और आरटीपी के मई 23 में आया था। अब थोड़ा सा एनालाइज करो, इससे एनालिसिस आपको समझ में आएगा। अब देखो, एक एनालिसिस क्या समझ में आ रहा है? आरटीपी कौन से इसमें आया था? आरटीपी कौन से इसमें आया था? मई 23। और कौन से एग्जाम में आया? यानी आपको कुछ समझ में आ रहा है इससे? एक स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग इंट्यूशन क्या समझ में आ रहा है? अगर एक आरटीपी का क्वेश्चन है, वो खाली उस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके अगले 2-3 अटेम्प्ट के लिए वो मैटर्स है लॉट। यानी अब जब मैं आपको बताऊंगा ये आरटीपी ओके सितंबर 24 का है, या आरटीपी मई 24 का है, या आरटीपी जैन 25 का है, ओके, मैटर्स अ लॉट। ये ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज ओनली अबाउट ए जजमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होता ही है, फिर तो इसका मतलब एकदम सिंपल होगा, सर एक काम करते सब बंद कर देते, आरटीपी पढ़ लेते, लास्ट 4-5 अटेम्प्ट की आरटीपी पढ़ लेते, कहानी खत्म सर, कहानी खत्म ही है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बचाएगा बचाएगा। तो टेक्निकली ये दिस पॉलिसी शुड नॉट बी यूज्ड। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, तो ये आपने लिख दिया, तो पहला पॉलिसी आपने ध्यान रखना है। तो आप पहला लाइन लिखोगे, अ कंपनीज, बताओ, कंपनीज स्ट्रैटेजी इज टिपिकली a blend of a company strategy is typically a blend of किसका? Proactive and reactive actions। वर्ड देखो, एक्शंस लिया है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस। नेक्स्ट लाइन क्या समझाऊंगा अभी? नेक्स्ट लाइन किसको समझाऊं? प्रोएक्टिव। ओके, पैराग्राफ चेंज करो, प्रोएक्टिव में केस स्टडी आया तो इसको कैसे लिखना है 10 मिनट के बाद बात करेंगे। 10 मिनट मतलब कल वाले में बात करेंगे, 10 मिनट के बाद मतलब विनोद सर आ जाएंगे। ओके, प्रोएक्टिव बताइए, प्रोएक्टिव मतलब क्या? प्रोएक्टिव डैश इन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे वर्डिंग्स अपने को बैठे दी जाएगी, तो अगली बार मतलब 1-2-4 आंसर होने के बाद आप खुद उसको आप मतलब रिपीट करते रहोगे, आप बोलते रहोगे। तो अभी ये इसमें बोलो, इन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन विल, ओके, ऑर्गेनाइजेशन विल एनालाइज पॉसिबल, वर्डिंग देखो, इन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन विल एनालाइज पॉसिबल, क्या पॉसिबल? एनवायरमेंट सिनारियोज, पॉसिबल एनवायरमेंट सिनारियो, SCENARIO सिनारियो, एंड क्रिएट, ये क्रिएट है,
स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क आफ्टर। तो 3 वर्ड क्या क्या मिले आपको? मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसे हाईलाइट भी करते रहता हूं, आपको करना है आप करिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, बस कीवर्ड चाहिए मेरे को। विल एनालाइज पॉसिबल एनवायरमेंट सिनारियो, फिर स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क आफ्टर। डायरेक्टली एडॉक बेसिस पे करेंगे या प्रॉपर प्लानिंग से जाएंगे? ऐसे डायरेक्ट एडॉक करेंगे या प्रॉपर प्लानिंग? ओके, आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग and set procedures. Set procedures. Set procedures in, तो ये और एक वर्ड आ गया, प्लानिंग एंड सेट प्रोसीजर्स इन। एक वर्ड आपने सुना होगा प्री डिटरमाइंड मैनर, सुना है? व्हाट इज प्री डिटरमाइंड? पहले से, इन प्री डिटरमाइंड मैनर, दैट्स इट योर प्रीडिटरमाइंड मैनर। ये हो गया आपका प्रोएक्टिव। आई होप जी पाई मालिक, ठीक है। अब मेरे को बताओ कौन सा और एक ऑप्शन लिखना है अपने को? रिएक्टिव। तो रिएक्टिव की पहली लाइन क्या लिखोगे? क्यों रिएक्ट करना है, क्यों वापस क्या करना है? तो टेक्निकली पहली लाइन आपको ऐसी लिखनी होगी, अपन ने जो इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस किया होगा, क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा जैसे किया है? नहीं, पहली लाइन ही आपको लिखनी होगी। क्यों नहीं करेगा? दूसरी लाइन वो लिखनी होगी कि एनवायरनमेंट कैसा है? डायनामिक। दूसरी लाइन आप लिखोगे। इसीलिए एनवायरनमेंट में चेंजेस जो होते रहेंगे, क्या उसको अडैप्ट करना पड़ेगा? तीसरा, अडेप्टिंग सिचुएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अडेप्टिंग। एंड चौथा पॉइंट आप लिखोगे, ये अडेप्टिंग सिचुएशन को ही हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? रिएक्टिव। आई होप ये पैराग्राफ क्लियर है। तो पहला पॉइंट, ओके, रिएक्टिव स्टडी में इन रियलिटी नो कंपनी कैन फोरकास्ट both internal and external environment exactly. In reality, no company can forecast both internal and external environment exactly. ये वर्ड याद रखने का, exactly. Everything cannot be planned in advance. दूसरा ये स्ट्रक्चर आ गया कि हम प्लानिंग कर नहीं सकते। अब आप लिखोगे चेंजेस किस में होते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटीसिपेट मतलब प्रेडिक्ट करना, प्रीडिटरमाइंड मैनर है ना, वो कॉन्टेक्स्ट। इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटीसिपेट कंज्यूमर बिहेवियर। मैं इसके आगे लिखते जा रहा हूं, आप उसके नीचे लिखना, वो लाइन चाहिए आपके हिसाब से लिखते रहना, आपकी बुक है। कंज्यूमर बिहेवियर, राइवल फर्म्स मतलब कॉम्पिटिटर। आप उसको कॉम्पिटिटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइवल भी बोलते हैं, कॉम्पिटिटर भी बोलते हैं। राइवल फर्म्स, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया ना, राइवल फर्म्स और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। यानी अगर आप देखोगे, पहले आपको लिखना है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। ओके, जैसा प्लान किया था वैसा नहीं होगा। और भाई 3 वर्ड याद रखो, राइवल, कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी। इसमें चेंजेस कुछ भी आ सकते हैं। डन ये पॉइंट? इसमें चेंजेस कभी कोई भी आ सकते हैं। दिख रहा है क्या ये? चेंजेस कभी भी आ सकते हैं।
अब रिएक्टिव को लास्ट लाइन से कंक्लूड करो. Therefore, there will be difference between what is anticipated and what actually happens. Therefore, there will be difference between, अगर मैंने कुछ भी शॉर्टकट यूज किया होगा बाई चांस स्क्रीन पे, मतलब आई विल ट्राई कि वो यूज नहीं करूं, लेकिन अगर बाई चांस हो जाता है, जैसे बिटवीन को BW कर देता हूं मैं, आपने एग्जाम में शॉर्टकट नहीं करना है भाई साहब. ओके, बिटवीन व्हाट इज एंटीसिपेटेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स. एंड लास्ट लाइन बताओ इसमें फिर रिएक्टिव को. तो इसका मतलब डिफरेंस आ गया. तो मैंने क्या करना चाहिए मेरी स्ट्रैटेजी को, अब स्ट्रैटेजी को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए ना. चेंज के वर्ड और एक वर्ड, चेंज को वर्ड को अडॉप्ट कर सकते हो आप वर्ड, या तो और एक कर सकते हो मॉडिफाइड. आइदर ऑफ इट, रीडिजाइन कैन बी देयर. तो लास्ट लाइन रिएक्टिव में डाल दीजिए, स्ट्रैटेजीज नीड टू बी मॉडिफाइड और चेंज और अडॉप्ट और रीडिजाइन, कुछ भी लिख सकते हो. एक ही वर्ड लिखो, तीनों मत लिखो. स्ट्रैटेजीज नीड टू बी, ऊपर करूं इसको अभी स्क्रीन पर, चलेगा नहीं, ये हो गया ना इतना. स्ट्रैटेजी नीड टू बी मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ एनवायरमेंट चेंजेस. इन द लाइट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस. आई होप झेपा मालिक एवरीबडी. एंड मतलब ये आंसर का क्लोजिंग स्टेटमेंट ये हो जाता. दैट्स इट. ओके, इसके बाद आपने पहली लाइन में डाल दिया था. अगर किसी ने पहली लाइन नहीं लिखी बाई चांस, आपने डायरेक्टली रिएक्टिव और प्रोएक्टिव समझाया, तो आपको लास्ट लाइन कंक्लूडिंग क्या लिखनी होगी. ओके, जो पहली लिखी है वो लास्ट करो. ओके, आई होप एवरीबडी क्लियर मालिक. एक मिनट ले रहा हूं मैं, सिर्फ एक मिनट के पॉइंट पे मेरे को बताओ. एबीसी लिमिटेड है. एबीसी लिमिटेड एक स्ट्रैटेजी बनाता है, समोसा मेकिंग कंपनी है. स्ट्रैटेजी बनाता है बाय डूइंग द एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट. ओके, और एनवायरमेंट में जो चेंजेस है उसको इग्नोर करता है. पीपल अभी फास्ट फूड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो इग्नोर किया, इसकी वजह से उनको लॉसेस हुए. तो उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए जिसकी वजह से ओके वो सक्सेसफुल हो सके. प्रोएक्टिव है ही उनकी, साथ में कैसी होनी चाहिए, रिएक्टिव. अब इसमें जो आंसर लिखोगे आपको याद यही रखना है, लेकिन इसमें अडेप्ट करना होगा चेंजेस. यानी एग्जांपल, आप जब प्रोएक्टिव लिखोगे, ये लिखने के साथ में आपको लिखना होगा एबीसी लिमिटेड ने ये बहुत अच्छे से किया था, एनालाइज करके समोसा मैन्युफैक्चरिंग किया, जिसकी वजह से मार्केट शेयर आया. यही लिखना है, इसको थोड़ा सा अडेप्ट करना. समझ में आ रहा है. एंड यही कॉन्सेप्ट रिएक्टिव में क्या लिखोगे, रिएक्टिव में जैसे ही एंड होगा okay, इसके पॉइंट पे, ये जो लास्ट वाली एंड की है, इसकी बेसिस पे ही आपको लिखना होगा कि एबीसी लिमिटेड की कमी क्या रह गई, दे डिडंट अंडरस्टूड और चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर. एंड इसके लिए ओके एबीसी लिमिटेड की गलती किधर है कि उनकी स्टडी कैसी है, खाली प्रोएक्टिव, बट क्या नहीं है, रिएक्टिव. आई होप ये समझ में आ रहा है मालिक एवरीबडी. ओके, सी यू टुमारो. अस्सला विस्ता. अस्सला विस्ता मतलब बाय. और ये एक आप फिल कर देना 1.2 में. ये वाला आंसर क्या है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट विच लेवल, 3 लेवल्स. कौन से 3 लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. एवरीबडी क्लियर. तोड़ मालिक. बबीता जी, आपको क्या इशू आया, आप मेरे को बताओगे क्लास में ऐप में आने के बाद, तो मैं देखता हूं उसको.
मेरे को तो समझ बढ़िया है। तोड़ मालिक।